मैं रईस भाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने डॉक्टर कुसुम अग्रवाल जी को हमारे मंच पर आने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर कुसुम अग्रवाल जी, आपको मैं बहुत ज़्यादा साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। जिनका मान लीजिए उनका बुध या सूर्य या मंगल इतना स्ट्रांग नहीं है, हेल्प की तो उन्हें भी जरूरत है। तो थेरेपी तो हर किसी को हेल्प करेगी, उसके प्लैनेट्स कहीं भी हो और किसी भी कंडीशन में। इवन देन वी कैन हेल्प रिलीज द स्ट्रेस, एंड लोगों की स्लीप बहुत अच्छी हो जाती है इससे, क्योंकि इट इज अ स्ट्रेस बस्टर। हम तो Yes. इसको रिलैक्सेशन के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा वरदान है नेचर का। रिफ्लेक्सोलॉजी अगर रात को कर दिया जाए, रिलैक्सिंग पॉइंट्स, पीपल स्लीप वेरी नाइसली, वेरी नाइस। महाभारती के मंच पर डॉक्टर प्रोफेसर कुसुम अग्रवाल जी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर थैंक इसलिए यू। कि वो रिफ्लेक्सोलॉजी का ज्ञान एमबीबीएस डॉक्टरों को भी देते हैं, और प्रोफेसर इसलिए कि इस विधा को हिंदुस्तान में, देश में, विदेश में आगे बढ़ाने का आप अथक प्रयास कर रहे हैं। तो मैडम, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये यस। एक्यूप्रेशर, अकुपंचर, एस्ट्रोलॉजी में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री वर्ड्स? रिफ्लेक्सोलॉजी, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्सोलॉजी है क्या। जी। रिफ्लेक्सोलॉजी एक नेचुरल थेरेपी है जी। इन विच योर बॉडी इज हीलिंग। ओके। Everybody has a natural healing force, and that natural healing force heals your body. ओके। Now आपको, you want to know what is the difference between acupressure, reflexology and acupuncture. जी। See, reflexology is worked far away from the problem area or from the pain area, and it is, we are working on the reflexes. Reflexes are like, say like a switchboard. Compared to a switchboard, you press a button, you know where it is going. If I know that it is button for the fan, I switch it on and the fan starts rotating. And same way for the electricity and other things. Now, when I know what reflex is for what particular organ, and when I press that organ, so that life energy force which was getting blocked gets start flowing properly, and it heals. So healing is not done by the chemicals or the medicines or from outside, but your body heals itself. Very important thing about reflexology is this. Another thing is acupressure is also a natural therapy in which most of the time you're working near the problem area. Supposing I have a knee pain, then people are working near the knees, or back pain, then they are working on the back. And in some cases, supposing the back is very soft or it is, you know, bones are thin and fragile, in that case, if more pressure is applied on the back, then it can be harmful also. It can lead to damages also. There are many cases, because I'm in this line for last 30 years. So I come across many cases in which some people have been affected because of that. Now, acupuncture. In acupuncture, we are using needles. So a needle is pricked in the body at different points. Now, acupuncture is based on the theory that there are zubos and marmas in our body. Now, zubos are the point where if you prick, the energy will start flowing in that energy channel. But if you prick in the marma, which is very close to the zubo, it can harm. Those marmas are the points which were taught to Kshatriyas, कि भाई, if you put arrow there, it will damage the hand, it will damage the foot, it will damage the leg, and a person won't be able to move. So nobody wants to harm, but you should have full knowledge of all the anatomy and every single muscle and the nerve to work for acupuncture. Another thing is needle is going in that, and according to the diagnosis of a person, they put needles, say set of 100 needles or 200 needles. So according to that, the set is decided. So they all work, but of course, if something is going inside, blood is coming out, so it can have some
side effects of its own. Okay, thank you for your bringing remark, Madam कुसुम अग्रवाल जी. जो हम जन सामान्य समझता है वो ये समझता है कि रिफ्लेक्सोलॉजी में आप फूट के और हाथ के प्रेशर देकर आप रिफ्लेक्सेस से बीमारियों को दूर कर सकती हैं, एंड इट इज ए साइंस टू क्योर एनीथिंग एंड एवरीथिंग विदाउट मेडिकेशन. इसमें कितनी सत्यता है जी? तो ज्यादातर लोग तो ये समझते हैं कि रिफ्लेक्सोलॉजी या एक्यूप्रेशर, जो कि जनरल लैंग्वेज में लोग एक्यूप्रेशर भी बोल देते हैं इसको, कि ये जो है सिर्फ पेन्स के लिए है. बैक पेन, नेक पेन, नी पेन, शोल्डर पेन, लाइक दैट. जबकि रिफ्लेक्सोलॉजी एक बहुत साइंटिफिक चीज है. इट हैज कम फ्रॉम अमेरिका, फ्रॉम द डॉक्टर्स, फ्रॉम एमडी डॉक्टर्स इन दिस फॉर्म. It may have its oriental connection actually in the long run, but in this form, Boston में डॉक्टर थे, डॉक्टर फिट्जगेरल्ड, who gave us zone theory, and on that zone theory, Dr. Riley and Unisingham, they worked together and they found out this reflexology in this form. They charted it that different organs on the foot, 2 feet has reflexes for the entire body. So they charted it out and they told us that if you press this point, it will benefit that particular point. So I can show you that chart. Can you see it? You can share it to me one to one. I will put in the slideshow, and Sure. that will be better, I think. Okay. So this chart, ये चार्ट हमको उन लोगों ने बना करके दिया, एंड उस चार्ट के ऊपर हम लोगों ने बहुत सारे वर्क किए. एंड यूनिसिंगम की एक बुक थी, स्टोरीज द फुट कैन टेल, कि पैर से हम क्या क्या कर सकते हैं. उसके बाद उनकी एक नेक्स्ट बुक आई, स्टोरीज द फुट हैव टोल्ड, कि क्या क्या उन्होंने ठीक किया उनसे. तो हमें जब उन सबको हमने पढ़ा, तो जब मैंने रिफ्लेक्सोलॉजी के बारे में सुना तो मुझे कोई विश्वास नहीं हुआ. देखिए, एक मेरा बैकग्राउंड बीएससी मैंने किया है, तो मुझे लगता था कि मेडिसिन, जो हमारी जनरल इंफॉर्मेशन एंड थिंकिंग है लोगों की, कि दवाइयों के बिना कुछ कैसे ठीक होगा. ज्यादातर लोग यही सोचते हैं और हम भी यही सोचते थे. तो हमने बोला कि भाई दवाई के बिना कैसे ठीक होगा, इतने बड़े बड़े डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल हैं, तो ये सब सीखने से क्या होगा. एंड यू वोंट बिलीव, जिस टाइम पर मैंने ये किया, उस टाइम मुझे खुद को रिमेटॉइड आर्थराइटिस था और बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन थी. तो जब मेरी फ्रेंड ने उसको बोला तो उसने कहा कि नहीं नहीं सीखते हैं, किसी ने बोला बहुत अच्छा है. मैं कहा ठीक है, आप बोल रहे हो तो मैं चलती हूँ आपके साथ सीखने के लिए, बट मुझे लगता नहीं है कि ये किसी यूज का, कि हम कोई बीमारी जस्ट पॉइंट्स को प्रेस करके ठीक कर सकते हैं. तो खैर, when I went for the class and I saw the books, I said, oh, this is science. This has come from doctors. And this is scientific. We are learning anatomy, physiology, everything. And then we are working on the points. It is not just random कि आपने कोई भी point कर दिया. No, body is connected. So when I understood that this is science and I started working and I started getting better. Point is that when I learned, and we two friends used to practice on each other, and I started getting better. So then I said, okay, it works. When you experience yourself on your own, then you really believe a thing. कोई बोलेगा तो आपको नहीं पता है. मुझे कोई कितना भी बोले कि एप्पल स्वीट है, जब तक मैं उसको नहीं खाऊंगी मुझे नहीं पता उसका क्या टेस्ट है. तो जब मैंने रिफ्लेक्सोलॉजी को अपने ऊपर फील किया और मैंने देखा कि मेरी प्रॉब्लम्स किस तरीके से बेटर हो रही हैं, every day I'm becoming better. Slowly I started leaving my medicines and I was fine with leaving my medicines. Medicines generally arthritis में क्या होती हैं? Painkillers, muscle relaxants, so that brain relaxants, so that you are not tense and then you are okay to tackle your day-to-day life. But chemicals over a long term naturally lead to so many problems. मैं बहुत लंबे टाइम तक पेन किलर लेती रहूंगी तो कहीं ना कहीं मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम को वो अफेक्ट करता है ना. Okay, so when I experienced it on me, I will like to know from you
हाँ, कि ये जो विधा है या जो विज्ञान है, ये हमारे मित्र वगैरह बताते हैं, कहीं पढ़ा भी है कि ये लगभग वैदिक काल से है, 2000 BC और उससे आसपास का ही ये तीनों साइंसेज हैं। और कुछ कहते हैं इसको एंशियंट में ऐसा था, अब मॉडर्न 19वीं शताब्दी या 20वीं सदी से चालू हुआ। और कुछ मित्रगण हमारे ये कहते हैं कि चाहे मैग्नेट थेरेपी हो, चाहे आपकी एक्यूप्रेशर हो, चाहे एक्यूपंक्चर है, अब इतने पास पास पॉइंट्स होते हैं, तो जैसा आपने कहा उसका फॉल आउट कभी कभी निगेटिव भी हो जाता है। हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि जो आपकी जो टेक्निक है उसमें किसी तरह का निगेटिव इम्पैक्ट आने की कोई संभावना रहती है, या इट्स टोटली सेफ? जी। या दिस इज वेरी सेफ एंड टोटली सेफ, आई से। इसीलिए मैंने इसको एक्चुअली यूज किया, ऑल्दो आई लर्न मैनी मोर थेरेपीज ऑल्सो। लेकिन मैं इसको इसीलिए फॉलो करती हूँ क्योंकि इसमें हम किसी का नुकसान नहीं कर सकते। इफ यू मिस अ पॉइंट, यू मिस द रिजल्ट, बट दैट डजंट मीन यू विल हार्म समबडी, राइट? तो जबकि अगर हम देखिए, अगर हम प्रॉपरली करते हैं तो रिजल्ट्स तो इस थेरेपी के बहुत अच्छे हैं। और मैं तो करीब 30 साल से कर रही हूँ और मैं देख रही हूँ उसके वंडरफुल रिजल्ट्स आते हुए। साइनस, अस्थमा इज क्योरेबल, यू नो। some things are some in some cases we get relief, but in some cases we can give cure. And when a person is cured and they take care, supposing, see, there is always a cause for any problem. कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम ओरिजिनेट होती है हमारे लाइफस्टाइल से, या कुछ प्रॉब्लम हम कर रहे हैं उसी की वजह से, फूड से, सो मेनी थिंग्स। तो अगर पेशेंट उस चीज का ध्यान रखता है, देन दे रिमेन फिट, दे डोंट हैव टू कम अगेन इफ दे गेट वेल। सो अस्थमा क्योर हुआ और वो ठीक है बच्चा। कितने साल, करीब 12 साल हो गए। उसकी ग्रैंड मदर कभी कभी मिलती है एंड शी टेल्स मी कि इज फाइन, और उसको कोई इनहेलर नहीं लेना पड़ रहा, विच इज वेरी गुड। सी, इनहेलर्स हैं, कोई भी मेडिसिन है, हमें देनी तो पड़ती है जब इमरजेंसी है, दे आर फॉर अवर बेनिफिट। लेकिन अगर हम बिना मेडिसिन के, बिना केमिकल्स के ठीक हो सकते हैं, नथिंग लाइक दैट। एंड ह्यूमन बींग्स, हम ह्यूमन बॉडी से डील करते हैं, जिसे आप रिप्लेस नहीं कर सकते। इट इज नॉट टॉयज। सो वी हैव टू बी, आई एम वेरी केयरफुल अबाउट दिस, दैट इट शुड बी नॉन हार्म, नो हार्म, because हमारे we दर्शक should ये give, भी, not harm them. हाँ, मैडम, They're already हमारे they're दर्शक already suffering. हाँ हाँ, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि आपको व्यक्तिगत व्यक्तिगत रूप में किस तरह के ट्रीटमेंट में सबसे ज्यादा सफलता मिली, और किस तरह के ट्रीटमेंट में आपको लगा कि जितना आप कर सकती हैं उससे कम इफेक्टिव रहा आपका ट्रीटमेंट? जी। हाँ, देखिए, मैंने स्लिप डिस्क के बहुत केसेस किए, मोर देन 200 केसेस, एंड उसमें 100% रिजल्ट स्लिप डिस्क के अंदर। और जबकि आप जानते हैं कि स्लिप डिस्क बहुत पेनफुल होती है, कई बार तो लोग थोड़ा टेढ़े भी हो जाते हैं, मिसअलाइन भी हो जाती है उनके स्पाइन। इवन देन वी गॉट वंडरफुल रिजल्ट्स इन स्लिप डिस्क। अस्थमा आई टोल्ड यू, साइनस आई टोल्ड यू, इंक्रीजिंग द हाइट if they come at a particular time, like, growth time में अगर बच्चा आ जाता है, तो we get very good result in that also. Then stress and tension, hormonal problems, these are the main things जिसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, बहुत अच्छे। मैडम, वो लेकिन अगर साइनस के बारे में बताइए। छींक आने से मतलब है साइनस का? बहुतों को छींक आती है, बहुत दुखी होते हैं, नहीं ठीक हो पाती है। एक आध टिप भी बताती चलिए, सिंपल से, जो ठीक याद आना नहीं होता कर है। सकते हैं खुद। साइनस itself is not a problem. साइनस इज अ वर्ड जो हमारी बॉडी में, यहाँ पर कुछ एयर कैविटीज होती हैं, तो वो साइनसेस होते हैं। लेकिन जी। जब उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, म्यूकस भर जाता है, देन उसे हम साइनसाइटिस बोलते हैं, जो कि डिजीज है, जो कि प्रॉब्लम है। उस समय में आपको ब्रीदिंग में दिक्कत हो सकती है, आपको रेडनेस हो सकती है, पेन हो सकता है। इतना ज्यादा भर जाते हैं कई बार साइनसेस कि कुछ लोगों को इंजेक्शन से उसको खाली कराना पड़ता है, एंटीबायोटिक वगैरह से
जनरली एंटीबायोटिक से उसे कंट्रोल किया जाता है, लेकिन कुछ मेरे पास ऐसे पेशेंट आए हैं जिन्हें हर सीजन चेंज में साइनसेस को खाली कराना पड़ता था सिरिंज से। अब कुछ टाइम उन्होंने रेगुलरली कराया एंड दे आर फाइन, उनको जरूरत नहीं है इसकी। हालांकि मैं अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि कभी जरूरत पड़ती है सीजन चेंज में, यू कम टेक 1-2 सिटिंग्स एंड बी ओके। बट कभी कभी शुरू में 1-2 टाइम वो लोग आते हैं, 1-2 बार सीजन चेंज में, एंड देन दे आर फाइन। तो साइनस अपने आप में छींक आना नहीं है, छींक आना एक अलग प्रॉब्लम है। कई लोगों को बहुत ज्यादा बार बार छींक आती है, तो वो नोज में इरिटेशन से हो सकता है। दे कैन बी मेनी रीजंस। एक्चुअली किसी भी प्रॉब्लम के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एंड द ब्यूटी ऑफ रिफ्लेक्सोलॉजी इज वी वर्क ऑन द कॉजल लेवल ऑफ द डिजीज। बॉडी इज वन, सो वी वर्क ऑन द कॉजल लेवल ऑफ द डिजीज, नॉट ऑन द सिम्टम्स। एंड दैट इज वाई कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है हम उस पर वर्क करते हैं, इसलिए ठीक हो जाता है, इसलिए पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ केसेस मान लीजिए इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन में तो हमें क्या करेंगे हम उसके अंदर तो एंटीबायोटिक देना पड़ेगा ना, वो इतना स्ट्रांग इतनी तेजी से फैल रहा है। लेकिन हम जनरली इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए पॉइंट्स कर सकते हैं, वो जो पहले से, या फिर कैंसर है, दे हैव टू गो फॉर देयर ट्रीटमेंट। We cannot help them with cancer, but we can help them with the effects of the medicines. कई बार लोगों को वो कराने के अंदर भी मुश्किल होता है, ट्रीटमेंट लेना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग केमिकल्स हैं कैंसर के लिए। तो वो करा नहीं पाते हैं, और उनको पेट में दिक्कत होती है, खा नहीं पाते हैं। उन सब में वी कैन हेल्प देम ड्यूरिंग द कैंसर ट्रीटमेंट। बट आई कैन नेवर टेल देम कि आप इसको मत लीजिए। इवन बीपी है, शुगर है, वी डोंट टेल देम कि आप मेडिसिन छोड़िए। नो, कंटिन्यू विद योर मेडिसिन एंड लेट द डॉक्टर रिड्यूस इट। वी आर नॉट authorized to change their medicines. So मैडम we एक don't make. एक एक Yeah. एक बिंदु ये भी है जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि अब फूट और हैंड के थ्रू आप जो ट्रीटमेंट करती हैं, तो किसी सहायक की जरूरत होती है कि व्यक्ति विशेष अगर सीख जाए तो खुद भी अपना ट्रीटमेंट कर सकता हाँ जी, सेल्फ हीलिंग है। आप अपना पैर रख करके, क्योंकि हम हाथ पर भी सिखाते हैं, तो यू कैन जस्ट प्रेस योर हैंड लाइक दिस एंड वर्क ऑन योरसेल्फ, राइट। तो मैं जब सिखाती हूँ तो पैर का तो सिखाती हूँ, हाथ का भी सिखाती हूँ। तो हम अपना तो सब देखिए, अगर आप खुद ठीक नहीं है तो आप किसी को क्या ठीक करेंगे। है? जी इसलिए अपने आप को ठीक रखना तो बहुत जरूरी है। जी। तो इसलिए हम वो सेल्फ हेल्प भी सिखाते हैं। और पैर देखिए, रिजल्ट पैर से बेटर इसलिए आते हैं क्योंकि फुट थोड़ा कम यूज होता है। दूसरा, फुट के अंदर 72,000 नर्व एंडिंग्स हैं। फॉर ऑल द ऑर्गन्स वी हैव रिफ्लेक्सेस एंड वी हैव सो मेनी नर्व एंडिंग्स इन द फुट। तो जब हम उसको एक्टिवेट करते हैं, वी आर एक्टिवेटिंग द फोर्स, एंड बिकॉज इट इज फारदेस्ट फ्रॉम द ब्रेन, सो इट इज कनेक्टेड टू द ब्रेन विद हॉट वायर। क्विकेस्ट रिस्पॉन्स पहुंचता है ब्रेन के पास, क्योंकि आपको चलना है, आप पैदल चलेंगे, कांटे लगेंगे, कुछ भी होगा, foot should not be damaged. So nature has given this privilege to the foot that it is connected with the brain on the hot wire. सबसे पहले मैसेज फुट का जाएगा वहां पर, और when we send the message through the foot, then brain, which is the controller of the body, along with other organs, see glands and all the organs, it activates and tells, okay, ये problem है, help it. इस सिस्टम को जाकर, इस ऑर्गन को जाकर इस पर्टिकुलर चीज के लिए आपको सपोर्ट देना, हेल्प देना। सो इट इज नॉट जस्ट वन ऑर्गन। मान लीजिए आपको डायबिटीज है, डायबिटीज का हम क्या समझते हैं कि वो पैनक्रियाज से कनेक्टेड है, बट पैनक्रियाज को कंट्रोल कौन कर रहा है? पिट्यूटरी। अब पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस। एंड देन अल्टीमेट कंट्रोलर इज ब्रेन। तो अगर हम सारा सिस्टम ठीक से करते हैं, देन ओनली वी कैन हेल्प अ पर्सन, नॉट अदरवाइज। मैडम बड़ा इंटरेस्टिंग है। सब लोग कहते हैं कि ब्रेन ही सब बीमारी का जड़ है, दिमाग आपका शांत रहे आपका दिल भी ठीक रहेगा। मगर आपने तो बहुत मजेदार बात बता दी कि फूड इज द कंट्रोलर ऑफ द ब्रेन। इसके बारे में कुछ टिप्पणी करिए। I'm not saying that foot is the controller of the brain. Brain ही controller है, but we can activate the brain through the foot. We can heal the brain through the foot. Foot is actually a remote control repair kit provided to you by nature. तो हमें पता नहीं था कि हमारे पास रिपेयर किट है, जो हमेशा थी हमारे पास।
अभी करीब 100 साल पहले ही एक तरीके से रिवील हुआ है, एंड दिस थेरेपी इज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. क्यों? इट इज सिंपल, इट इज इफेक्टिव, पीपल आर गेटिंग रिजल्ट्स, दैट इज व्हाई इट इज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड सो सून. से 30 साल से तो मैं ही कर रही हूँ, और अमेरिका में ये निकली है, और उसके बाद पूरे वर्ल्ड में फैल गई है ना. हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं ओरिजिन रहा होगा इंडियन उसके अंदर. एक्चुअली मैंने इसके अंदर कुछ बुक्स पुराने अपने स्क्रिप्चर्स पढ़े थे, उनमें कुछ मेंशन भी है, पर बहुत ज्यादा राइटन डॉक्यूमेंटेशन या तो है नहीं या डिस्ट्रॉय हो गया है, इसलिए ज्यादा पता नहीं है. लेकिन हमारी फिलॉसफी में पैर को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है. पैर को टच करना, पैरों को साफ रखना, पैरों को ड्राई रखना. हमारे, देखिए, अगर हम हिंदू मैथोलॉजी को या अपने एंशियंट हिस्ट्री को समझेंगे, तो हम देखते हैं कि पैरों को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है. तो इसका मतलब मालूम तो था, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत सिंपल था. और जब आयुर्वेदा और जब चीजें आई, तो इसको शायद लोगों ने भूल गए. लेकिन अब अगेन नेचर हैज गिवन इट, बिकॉज नेचर फील्स इट इज द टाइम फॉर एनर्जी हीलिंग्स. यू नो, स्ट्रेसेस इतने हैं आज. स्ट्रेसेस सिर्फ माइंड का स्ट्रेस नहीं है, साउंड स्ट्रेस, पोल्यूशन स्ट्रेस, food infection stress, noise pollution, of course. So there are many other stresses along with financial stress, disease stress, and so many more things. Virus, bacteria. एक वायरस ने तो पूरे वर्ल्ड को हिला दिया. तो ये सब स्ट्रेसेस हैं, जिसकी वजह से देखिए, माइंड जब अफेक्ट होता है तो पूरी बॉडी अफेक्ट होती है. आप माइंड और बॉडी को सेपरेट नहीं कर सकते. इसलिए माइंड को रिलैक्स करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स डाइजेस्टिव सिस्टम से भी आती हैं. अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होता है, तब भी ऐसा बोला जाता है कि 50% प्रॉब्लम्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं, टेक केयर कर सकते हैं, इफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज फाइन. मैडम, यू नो, हमारे जो दर्शक हैं वो चाहते हैं कि जो आपका टॉक शो है उससे उन्हें कुछ लाभ मिले, तो जरूर. एसएमएस टाइप की कोई टिप्स आप जरूर बताइए. जैसे हाई ब्लड प्रेशर के लिए आदमी क्या करे, लो ब्लड प्रेशर पे सिंक कर रहा है आदमी, क्या करे? एक दो प्रेशर पॉइंट आप जरूर बताते चलिए, अगर व्यक्ति विशेष अपना निदान खुद कर सकता है, नहीं तो कोई बात देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी थेरेपी जो है वो टेक केयरिंग ऑफ द होल बॉडी है. तो एक पॉइंट करने से जनरली चीजें ठीक नहीं होती हैं, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर ना, पहले हाई ब्लड प्रेशर को लेते हैं. हाई ब्लड प्रेशर के बहुत सारे कारण हो सकते हैं. कई बार तो सोडियम एंड पोटेशियम का इम्बैलेंस जो होता है, वो एक बहुत बड़ा कॉज होता है हाई ब्लड प्रेशर का, है ना. पोटेशियम रिड्यूस हो जाता है या सोडियम बढ़ जाता है या जो भी. और दूसरा होता है स्ट्रेस एंड टेंशन, जो हम जानते हैं. तीसरा होता है हार्मोनल डिस्टरबेंसेस, जिसकी वजह से भी कई बार आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है. वो कई बार टेम्परेरी भी होती है. इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कई बार हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, जो डिलीवरी के बाद ठीक हो जाता है. लेकिन जो हार्मोनल रिलेटेड है, उसके अंदर फिर हमको हार्मोन्स को वर्क करना पड़ेगा, ग्लैंड्स को हेल्प करना पड़ेगा. सो वी शुड फर्स्ट नो द कॉज इन हाई ब्लड प्रेशर. लेकिन स्ट्रेस को रिलीफ करने के लिए और लो ब्लड प्रेशर के लिए, आई कैन टेल यू सम पॉइंट्स. सी, these are your brain points on the hand. So you can work here on the brain, on the big toe. I think it is visible. है. यस यस. So you can work on the big toe like this with your finger, and also on all the other fingers like this. So it will be improving the circulation to the brain, and then brain will feel relaxed. You know, circulation is very important. And then one more point, if you draw a line from here, from the middle of the thumb and from the middle of the finger, first finger, so where it comes is, it will meet here. So we put the thumb here and we press it like this. So this is the point for adrenal gland. Adrenal gland is taking care of 50 functions in your body. It is producing 50 hormones. Small gland producing 50 hormones. And when we activate this gland, if you are having a problem of breathing, asthma, blockage, or even if for low blood pressure, you just press this gland
and immediate relief you will get in both, in asthma as well as in low blood pressure. और हाई ब्लड प्रेशर में मैडम क्या करें? हाई ब्लड प्रेशर में अनुलोम विलोम कीजिए, रिलैक्स योर माइंड विद प्राणायाम. तो क्योंकि क्या मैडम है, मैं देखिए, जल्दी जल्दी आपसे डाइट का केयर करना पड़ेगा. हाई ब्लड प्रेशर में डाइट का केयर करना पड़ेगा, रिलैक्स करना पड़ेगा, वॉक करना, पानी ज्यादा पीना. देयर आर मेनी थिंग्स अलोंग विद दिस. बॉडी का पूरा सिस्टम, हमें मालूम नहीं है किसी का हाई ब्लड प्रेशर क्यों है. किडनी से भी आ सकता है, लिवर मेल फंक्शन से भी आ सकता है ना. तो हाई ब्लड प्रेशर के लिए वो देखना पड़ता है मैडम कि अब उसका हम कॉज. जल्दी जल्दी आपसे कुछ बीमारियों के बारे में जानना चाहेंगे, हाँ, और उसका बिल्कुल. अगर कोई आपके पास टिप हो, हैं, तो वो जरूर बता दीजिएगा. ये पार्किंसन डिजीज का क्योर है क्या? आपकी जो विज्ञान है या ज्ञान रिफ्लेक्सोलॉजी में है, उसके बारे में कुछ टिप्पणी करिए. यस, मैंने पार्किंसंस के करीब 4 या 5 केसेस किए हैं. और पार्किंसंस आपको मालूम ही है, डिजेनरेटिव डिजीज है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है. और इंसान उस हालात में हो जाता है कि वो खुद अपने हाथ से खा भी नहीं पाता है. स्पिलिंग होता है, वाटर वगैरह तो बिल्कुल अपने हाथ में होल्ड नहीं कर पाता है, क्योंकि शेकिंग ऑफ द हैंड इज ऑल्सो देयर. So one of my patients, she was in a very bad condition. So when I was working on her, see, I don't know, I don't do any tests and all. Patients tell me कि she is feeling better, sturdy है. थोड़ा उनका जो माइंड बॉगल अप होता है ना, कि हम ये नहीं क्यों कर पा रहे हैं. एंड मेरी स्टडी ये है कि जो वो बहुत ज्यादा स्कॉलर्स, इंटेलिजेंट लोग हैं, जनरली मैंने देखा उन्हीं को पार्किंसंस, मेरे पास जो केसेस आए वो जनरली उन्हीं लोगों के थे. सो दे गेट रियली बॉगल्ड अप कि भाई हमें ये क्यों हो गया, अब हम कैसे मैनेज करें. क्योंकि वो बहुत डिसिप्लिन लाइफ लीड करते थे पहले, और अब उन्हें हेल्प लेने की जरूरत पड़ रही है. एक तो वो स्ट्रेस होता है. तो जब आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है, तो यू फील लिटिल बेटर विद दिस. एंड द डॉक्टर्स टोल्ड देम कि आप जो भी कर रहे हैं उसे कंटिन्यू करिए, क्योंकि आपका प्रॉब्लम बढ़ने की बजाय घट रहा है. टेस्ट आर शोइंग इट इज गेटिंग बेटर. सो आई डोंट से कि वो 100% ठीक हो गया, लेकिन स्टॉप हुआ और बेटर होना शुरू हुआ. अब पेशेंट के ऊपर है, पुरानी प्रॉब्लम है, वो कितने टाइम आता है, कितना रेगुलरली आता है, उसके ऊपर भी तो है ना. पेशेंट को पेशेंस रखनी पड़ती है. अगर वो पेशेंस नहीं रखता है और रेगुलरिटी नहीं रखता है, तो लिमिटेशन होती है. लेकिन हाँ, मेरे पास आते हैं पेशेंट जो बहुत रेगुलर हैं, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स लोगों को मिले हैं. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. तभी तो मुझे भी एनकरेजमेंट मिलता है करने का, कि हाँ भाई रिजल्ट आ रहा है. आई वांट रिजल्ट्स. ओके वही मैडम. मेरा रिवार्ड. दूसरा ये है कि आपने तो जो बताया पार्किंसन के बारे में, हमारे एक मित्र हैं, वो चाहते थे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए. वो कहते हैं मुझे तो रेस्टलेसनेस महसूस होती है, मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है. इसके लिए कोई अगर प्रेशर पॉइंट हो बताएं तो अच्छा होगा जी. आप देखिए, आपने कितनी सारी प्रॉब्लम्स बताई. बेचैनी है, रेस्टलेसनेस है, ये सब. अब रेस्टलेसनेस कैन बी बिकॉज ऑफ एसिडिटी, it can be because of gas, it can be because of just the mental stress, it can be because of because of aging. When we age, we are not able to do some works as we were able to do before. एनर्जी लेवल में फर्क पड़ जाता है, और उन सब से. सो देयर आर मैनी 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 कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम. तो उसमें तो फुल बॉडी ट्रीटमेंट्स बहुत जरूरी होता है. आप माइंड को बॉडी से सेपरेट करके सिर्फ माइंड का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते. बॉडी ठीक होगी तभी माइंड ठीक होगा, माइंड ठीक होगा तभी बॉडी को भी हेल्प मिलेगी. दे आर वेरी वेल इंटीमेटली कनेक्टेड. मैडम ये हमारे तो मित्र जो राजेश ओराय जी बैठे हुए हैं यहाँ पे, हाँ और जी. हमारे प्रोफेसर अनिल जैन साहब हैं एस्ट्रोलॉजी के, उन्होंने तो हमें हाथ में बता रखा है कि भैया ये कौन सा प्लेनेट गड़बड़ी करता है, और उस प्लेनेट की वजह से कहाँ कहाँ गड़बड़ी होती है, कहाँ राहु है, कहाँ केतु है, और कहाँ मार्स बैठा हुआ है. तो हम लोगों ने तो जो रिसर्च की, जो भी तबीयत घबराए, तो हम तो ये कहते हैं कि भैया गायत्री मंत्र का जाप करो और उतनी देर तक दबाओ, देन स्विच ओवर टू अदर पॉइंट. सेकंड पॉइंट पर आइए, सेकंड को खुश कर लीजिए,
मून को खुश कर लीजिए। और हम जो राय लोगों को देते हैं कहाँ तक सही है, हम कहते हैं कि वो चप्पल आती है हैं जिसमें कि कीलें सी लगी होती हैं, चलना तो बड़ा मुश्किल होता है। तो वही किसी डॉक्टर के पास क्या जाओ, और आप तो फिजिकली बुलाएंगी, ऑनलाइन कंसल्टेशन तो बहुत डिफिकल्ट है। आप इसके बारे में टिप्पणी करिए थोड़ा। आपकी गाड़ी खराब हो जाती है, आप मैकेनिक के पास जाते हैं ना, थोड़ी सी भी आवाज आती है उसमें से, सबसे पहले मैकेनिक के पास जाते हैं। लेकिन हमारी बॉडी में कोई पेन होगा, कुछ भी होगा, तो हम कहेंगे हो ये तो ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। कभी कभी ठीक हो भी जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी की एक सेल्फ रिपेयरिंग नेचुरल हीलिंग फोर्स है जो उसको ठीक करती है। तो अब अगर आपको लगता है कि, देखिए, अगर मेरी बॉडी में, मेरे हाथ में बहुत क्लोज क्लोज पॉइंट्स हैं, जब अगर मैं अगर अंगूठा आपको दिखाती हूँ, यहाँ पिट्यूटरी, उसके पास पीनियल, उसके पास हाइपोथैलेमस, दे आर सो क्लोज बाय। एड्रिनल मेरे हाथ में एक पर्टिकुलर जगह पर है, दूसरे हाथ में थोड़ी सी डिफरेंट लोकेशन पर आएगा। इसी तरीके से पैर में, एक पैर में डिफरेंट लोकेशन पर आएगा, दूसरे में थोड़ा डिफरेंट लोकेशन पर आएगा। अगर मैं चप्पलों पर खड़ी हो रही हूँ जिसके अंदर स्पाइक्स हैं, ठीक है, मैंने माना कि वो थोड़ा सा वहां पर इरिटेशन करेंगे, लेकिन उसका हार्मफुल इफेक्ट ज्यादा हो सकता है देन बेनिफिशियल इफेक्ट। क्यों, वो भी बताऊंगी मैं आपको। कंटिन्यूअस प्रेशर ऑन ए पॉइंट विल क्रिएट, स्टॉप द सर्कुलेशन एंड द नर्व सप्लाई, नम्बिंग इफेक्ट हो जाता है। यू नो, डॉक्टर फिट्स गैरल्ड, जिनका नाम मैंने शुरू में आपको लिया था जोन थ्योरी का, तो वो एक ईएनटी स्पेशलिस्ट थे, और उन्होंने कुछ ऐसी चीजें देखी कि कुछ पेशेंट्स को पेन कम होता है, तो रबर बैंड वगैरह यूज करके, दे यूज टू टाई अ रबर बैंड समवेयर, एंड ही यूज टू डू माइनर सर्जरीज विदाउट एनेस्थीसिया, क्योंकि उस पर्टिकुलर पोर्शन को नम कर दिया। तो कंटिन्यूअस प्रेशर ऑन ए पॉइंट इज नॉट गुड। हम जो करते हैं उसके एक पर्टिकुलर मेथड है, थंब फिंगर्स के मूवमेंट का एक साइंटिफिक तरीका है, और जब हम उस मूवमेंट को, उस होल्डिंग को उस पर्टिकुलर साइंटिफिक तरीके से करते हैं, देन वी कैन रीच दैट रिफ्लेक्स प्रॉपरली, अदरवाइज वी कैन नॉट। सो आप सोचिए कि उसके ऊपर खड़े होने का, उससे उससे बेटर है कि आप नंगे पैर घास में चलिए। दैट इज मच सेफर एंड मच बेटर देन स्टैंडिंग ऑन दैट। सॉरी टू से, बट वो एक कोई भी चीज पॉपुलर होती है लकड़ी तो की बिजनेस चप्पल पीपल। पहनते थे, भगवान राम और खड़ाऊं रख देते थे, और तो लकड़ी की चप्पल ही पहनी जाए घर में, क्या क्या राय है आप? लकड़ी की चप्पल पहन सकते हैं, उसका कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं है। पहले क्या था, एक पर्टिकुलर टाइम था जिस समय रामचंद्र जी की आप बात कर रहे हैं, उस टाइम लेदर और ये शू इंडस्ट्री इतनी जबरदस्त डेवलप नहीं थी। आज तो आपके लिए कंफर्ट के साथ में अच्छा शू बनाया जाता है, टेक केयर किया जाता है। तो वो वुडन थिंग्स, दे वर नॉट वेरी कंफर्टेबल टू वॉक। और आज हम जितना चलते हैं करते हैं, आई डोंट थिंक कि वो आज इतना प्रैक्टिकल है। पहन सकते हैं अगर पहनना चाहें, क्योंकि इट इज अ गुड कंडक्टर, वुड इज अ गुड कंडक्टर, एंड आपको प्राणा लाइफ एनर्जी जो होता है, अर्थ का जो एनर्जी है वो थोड़ा उससे मिलता है, आइडियल इन एनर्जी, सो इट इज गुड इफ एनीबडी कैन यूज इट, नो प्रॉब्लम। इससे पहले अभी कि इस मैं ये शोभाय को हैंड ओवर करूं, एक चीज और जानना चाहता हूं कि मीनिया डिजीज जो कान की होती है, उसका इलाज आपकी इसमें है? और इसके साथ साथ जल्दी में ये भी जवाब दे दीजिएगा कि आदमी को जब प्रॉब्लम होती है तो वो आपके पास भाग के नहीं आ सकता। पॉइंट ये है कि उसे तो इमीडिएट रिलीफ चाहिए, तो वो कैसे मिले? ओवर टू। यस, उसी के लिए मैं पहले आपको जवाब, आपके सेकंड क्वेश्चन का पहले जवाब देती हूँ, कि क्योंकि वो मेरे पास हमेशा भाग कर नहीं आ सकता, इसीलिए मैंने ये टीचिंग शुरू की, कि मैं ये चाहती हूँ कि हर घर में एक रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट हो, ताकि वो अपने घर के लोगों का, ना भी प्रोफेशनली करना चाहें, तो एटलीस्ट अपने घर के लोगों का, अपने बच्चों का इमीडिएट बेनिफिट। गोइंग टू द हॉस्पिटल ऑल्सो टेक्स टाइम, डॉक्टर ढूंढने में भी टाइम लगता है ना? तो आप जब आपके अपने हाथ में एक चीज है, आपको खुद नॉलेज है, तो इमीडिएट फर्स्ट एड केयर, इनिशियल केयर आप खुद कर सकते हैं, एंड समटाइम्स यू कैन एक्चुअली गेट गेट देम वेल ऑल्सो, यू नो, अगर घर में आपके रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट है और अपनी फैमिली की केयर कर रहा है। तो दूसरी चीज जो आपने मेरे को राय पूछा, जी, आप कुछ पेचीदे और सरल क्वेश्चन पूछे कुसुम जी से। yes, it is a very very interesting talk. पर इसमें मैं आई विल ट्राई टू कनेक्ट लिटिल बिट विद एस्ट्रोलॉजी व्हाट वी आर रीडिंग नाउ इट इज। हाँ हाँ, एज पर एस्ट्रोलॉजी हमारे
I am reading one book, Astrology and Ayurvedic. पर एस्ट्रोलॉजी में जितनी भी ट्रीटमेंट है ना, इट इज ऑल आयुर्वेदिक बेस्ड। हम्म एस्ट्रोलॉजी सेज कि हमारी मोस्टली जो बीमारियां होती हैं ना, 80% ड्यू टू स्ट्रेस होती हैं। हम्म डेवलप इंक्रीज करती है हमारी स्ट्रेस, और हर एक बीमारी को 80% इंक्रीज हमारी जो है स्ट्रेस ही करती है। और हम्म हमारे मून और मरकरी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। हम्म तो उसमें वो बोलता है कि हमारे आयुर्वेदिक की बुक्स में भी लिखा हुआ है कि ट्रीटमेंट दिया हुआ है साथ साथ उसने, पर उसके साथ में वो क्या बोलता है कि आप अपने फुट का भी मसाज करिए। मे बी यस इट इज कमिंग लिटिल बिट नियर टू दिस रिफ्लेक्सोलॉजी। तो वो क्या बोलता है कि फुट के मसाज करने से क्या होता है आपका, कि आपका फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल तीनों को बेनिफिट मिलता है। बोलता है आपका स्ट्रेस सबसे ज्यादा रिलीज होता है आपका फुट मसाज करने से। बिल्कुल बिल्कुल। और और क्या बोलता है, जब आप फुट का मसाज करते हो ना, एक एंड्रोफिन, एक आपका जो जो आपका पेन किलर होता है ना, वो भी रिलीज होता है आपका फुट मसाज करने से। तो ही हम्म सेज कि इट इज नॉट दैट कि खाली उससे काम चलेगा आपका। एज पर आयुर्वेदिक आपको दवाई लीजिए साथ साथ में, उसके साथ में आपका फुट मसाज विल हेल्प यू। तो मुझे लगा कि ऐसा बात नहीं है, इंडिया में पुराने जमाने में भी कुछ था इस टाइप का, जिसको भी हम हम्म लोग में भी मोर साइंटिफिक बना दिया है अभी। हम्म अप्रिशिएट किया, आज का टॉक बहुत अच्छा रहा, पर डेफिनेटली इसका ऑनलाइन ट्रीटमेंट नहीं। देखिए, तेल लगाने से, फुट मसाज करने से, क्योंकि मैंने आपको बताया पूरी नर्व एंडिंग्स हैं पैर के अंदर, 72,000 नर्व एंडिंग्स हैं। तो जब हम फुट मसाज करते हैं तो वी आर इंक्रीजिंग द सर्कुलेशन, सो विच इज वेरी गुड। सर्कुलेशन का तो मेन काम है सब जगह फूड पहुंचाना, ऑक्सीजन पहुंचाना। और अगर हमारे ब्रेन को, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन और फूड प्रॉपरली मिलता है तो ऐसे भी उसको हेल्दी फील होता है। एंड ऑफन यस, रिलीज होता है थोड़ा मसाज से, बट वी हैव स्पेशल पॉइंट्स फॉर दैट आल्सो। और स्ट्रेस, यस, स्ट्रेस मेनली प्रॉब्लम का कारण होता है। लेकिन स्ट्रेस किसकी लाइफ में नहीं है और कब नहीं था? इट इज हाउ यू टेक द स्ट्रेस। अगर आपका, सी यू नो मोर, बट अगर आपका बुद्ध स्ट्रांग है तो आपकी स्ट्रेस लेने की कैपेसिटी, या अगर आपका मंगल स्ट्रांग है तो आप स्ट्रेस को फाइटर बन करके लेते हैं, है ना? लेकिन कुछ लोग उसको घबरा जाते हैं। अब उन लोगों को भी तो हेल्प की जरूरत है। जी, लोगों की दवाइयां छूट गई, नींद की गोलियां छूट गई मेरे पेशेंट्स। तो मैं मानती हूँ कि हाँ, प्लैनेट्स का असर होता है, लेकिन जो जिसको हेल्प की जरूरत है वही तो आएगा हमारे पास। जो नहीं, बस स्ट्रांग स्ट्रेस है रिलीज करना बहुत जरूरी है। तो नहीं आएगा ना। वो तो फाइट करेगा। राइट। Rajesh, so एनीथिंग एल्स? any other question? Otherwise, I will like to ask. नहीं, इट बहुत बहुत मतलब थॉट प्रोवोकिंग टॉक था ये। लेट अस ट्राई टू स्टडी लिटिल बिट मोर। पर इसके बाद में हमारे, हमको लगता है कि बहुत सारे और प्रैक्टिशनर होने चाहिए इस लाइन के, तभी